Hello students. Today we are going to start our next topic in the natural resources chapter. Okay. So in this topic we are going to study about the water or we have to study about the rain. तो ये दोनों चीजें same ही है. In yesterday's lecture we have already studied what is the atmosphere, what is the resources on the earth, what is the different types of layer present on the earth. So for that we have studied what is the atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. So generally the outer crust is known as the lithosphere, the water level contains and the water layer is known as the hydrosphere. The air around us of the layer is known as the atmosphere, and the living organisms are found to be the called as the biosphere. Okay, it will be also considered as the merge of the three layers that will present on the earth, like the atmosphere, lithosphere and hydrosphere. If we merge them three, and then we get the biosphere. Okay, in biosphere we have also considered the living organisms are also found in that. After that we have studied what is the air. Generally then we have discussed what is the air is generally the mixture of all the gases, like the gases of the nitrogen, carbon dioxide, oxygen, water vapor and other. Also we have studied the respiration process. During the photosynthesis process, what will be happen during the respiration process, what will be the happen. Oxygen is very necessity for all the breathing processes in the living organisms, and carbon dioxide is necessary for the plants. Okay. Also we have studied that the oxygen will be required for the burning of the fuel, because of where the oxygen will be not present, then the burning of fuel will not take a place. So for that oxygen is very necessity for it. Okay, so these types of study we have already done in the previous lecture. Today we are going to start the rains topic. So generally when water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates. So generally these types of study we have already done in this chapter number 1. In the vaporization process, in that process we have already studied that the surface layer of the water gets the vaporized by the sunlight, and it gets the vapor converted form into the clouds, and then the cloud will be generated, and these clouds will be going to one place to the another place, and then the rain will take a place because of the cold weather will be there. So that is why. Okay, so these types of study we have already done there. तो आज हम एक अलग बात करेंगे कि जनरली वाटर बॉडीज हीट होती है डे के दौरान, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है डे के दौरान. इसी वजह से जो है वाटर इवोपरेट्स होता है, राइज होके अप जाता है. फिर क्या होता है, सम वाटर वेपर आल्सो गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपीरेशन. यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से भी क्या होता है कि जो वाटर वेपर होती है वो कहाँ जाती है, राइज अप जाती है, यानी कि ऊपर जाती है. ओके, तो ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस वर्ड जो है वो नया है, लेकिन वो क्या है कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि नेचुरली ऐसी हवा जो आती है जिसकी वजह से वाटर वेपर जो है वो ऊपर चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है नीचे से ऊपर तक. इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं. As the water vapor rises, it cools and condenses to the form of tiny droplets of water. Okay, जनरली क्या होता है कि फिर ऊपर जाके वो वाटर वेपर जो होती है वो कूल डाउन होती है. कूल डाउन होने के बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर वो वाटर वेपर कन्वर्ट होती है, और उसके बाद वो जो है वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्जन होके क्लाउड्स में अपीयर होती है. When the tiny droplets of the water join together to form a bigger drops of water, they fall down as the rain. तो ऐसे छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होके फिर अगर जॉइंट होके मिलते हैं तो जनरली वो बारिश बन के फिर नीचे गिरते हैं. ओके, तो ये भी प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने देखी थी कि बारिश की होने की वजह क्या है. तो जनरली इवोपरेशन की प्रोसेस की वजह से जो है वो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. इसके बाद भी एक बार स्टडी आएगी रेन के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे वाटर साइकिल के बारे में. तो वाटर साइकिल की स्टडी आएगी तो उसमें भी ये सारी चीज़ें सेम ही होगी. वाटर साइकिल में क्या होगा कि पहले लेक से लेके ओशन में पानी आएगा, ओशन से इवोपरेशन की प्रोसेस होगी, फिर कंडेंसेशन वाटर में कन्वर्जन होगा, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्जन होगा, फिर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन होगा. क्लाउड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा. कोल्ड वेदर के कारण वहां पर क्या होगी, बारिश होगी. तो वो बारिश कहाँ पर गिरेगी, लेक्स या तो फिर स्नो के ऊपर गिरेगी. तो फिर क्या होगा कि फिर से वहां से पानी जो है वो रिपीट आ जाएगा ओशन के ऊपर. तो एक टाइप की साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है यहाँ पर. ओके, बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे फॉल डाउन एज द रेन, स्नो और हेल. ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि स्नो के फॉर्म में भी बादल से गिरते हैं,
वाटर ड्रॉपलेट्स कई बार हेल के फॉर्म में गिरते हैं और कई बार रेन के फॉर्म में भी वो गिरते हैं. देन वी हैव टू स्टडी वाटर एज द वंडरफुल लिक्विड, यानी कि जो है वो वाटर जो है हम लोगों को रिक्वायर्ड क्यों है. So a very large area of the Earth's surface is covered with the water. Generally, we have known that the 97% or 99% of the Earth is grounded by water, surrounded by water, but it will be still in the salty form. So we cannot use the all water that are present in the Earth. ओके, जनरली सारा का सारा जो पानी है वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, भले ही वहाँ पर क्यों ना 97% हो या 99% भी वाटर क्यों ना, लेकिन सारा जो पानी है उसमें से 1% पानी है वो ही सिर्फ हम लोग पी सकते हैं. 97 या फिर 93% जो वाटर है हमारी अर्थ के सराउंडेड में वो सॉल्टी वाटर है, तो इस वजह से उसका यूज़ हम लोग कर नहीं पाते. ओके, पर फिर भी हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो ये है सॉल्टी वाटर को गेट्स प्योरीफाइड करेंगे और प्योरीफाइड करके फिर उसको उसमें से नमक जो है वो निकाल देंगे और फिर उसको प्योरीफाई करके फिर पीने लायक बनाएंगे. तो ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा फ्यूचर के अंदर. जब आप भी शायद बड़े हो कि फिर आप भी शायद कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकते हो, इवोपरेशन की प्रोसेस के ऊपर कोई मशीन बना सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना यूज़ करें. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को भी रिसर्च करना, क्योंकि सिंपल है, सिर्फ हम लोगों को प्रोसेस ही करवानी है, तो वो प्रोसेस तो हम कैसे भी करवा सकते हैं. ओके, इवोपरेशन की प्रोसेस तो जनरली हीटिंग से करवा सकते हैं. अगर आप फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट करो, अगर आप में से कोई साइंटिस्ट बनता है, देन they can find the easily that products from the, then he can get the or she can get the product of the pure water from the salty water. Water is also found inside the earth in the atmosphere as water vapor. हम लोगों को पता है कि inside the water, inside the earth भी हम लोगों को मिलता है वाटर वेपर के फॉर्म में. ओके, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर, हम लोगों के एटमॉस्फेयर के लेयर में कल ही बात की थी कि वाटर वेपर जो है वो हम लोगों को कहाँ मिलेगी, एटमॉस्फेयर के लेयर के अंदर मिलेगी. ओके, द वाटर इन द सीज एंड ओशन इज सैलाइन. Fresh water is found in the river, lakes, ponds as ice and snow at the poles and mountain in the cold regions. Okay, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है. जनरली फ्रेश वाटर है वो हम लोगों को रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स में से मिलता है. आइस स्नो जो है वो पोल्स और फिर माउंटेन्स के रीजन्स में मिल जाते हैं हम लोगों को. वाटर इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड सेल्युलर एक्टिविटीज नीड्स अ वाटर. तो हम लोगों को पता है कि वाटर जो है वो बहुत ही नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को सारी एक्टिविटी करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है, हमारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है. सो फ्रॉम दैट वी हैव टू गेट द रिक्वायर्ड द वाटर सोर्स. So all organism needs water to survive. The amount of water and other factors like temperature and nature of soil decides the diversity of species and the number of individuals of the each species in area. So ये हम लोगों को बात कर रहे हैं कि जो वाटर का अमाउंट है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो जनरली वो टेम्परेचर या तो फिर सॉइल के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. ओके, जहाँ पर डाइवर्सिटी जो होती है, डाइवर्सिटी यानी कि जो थिंग्स, लिविंग थिंग्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. कोई जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको डाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं. ओके, तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है. कई बार क्या होता है कि हम ही लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे तालाब या फिर ऐसे होते हैं वो हम लोग ही क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय, हम लोग क्या करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे वाटर का, तो हम लोग कचरा वचरा वहाँ पर डाल देंगे तो वो पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा. तो जनरली वो हम लोगों को करना नहीं चाहिए. ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास जो मीठा यानी कि हम लोग जो पानी पीते हैं वो वाटर लेवल हमारे पास बहुत ही कम है. इस वजह से वो वाटर का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, या तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग कोई जो हमारा जो एक लौता सोर्स है पानी का वो भी हम लोग गवा देंगे. ओके, तो क्या है, द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द वाटर इज कॉल्ड द वाटर पॉल्यूशन. यानी कि वाटर के अंदर अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो बढ़ जाएं तो उसको मैं जनरली कहूँगा वाटर पॉल्यूशन. तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि व्हाट इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज द वंडर लिक्विड एंड व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन. ओके, तो वाटर पॉल्यूशन अभी मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ, तो आपको बाद में वो लिखना है, यहाँ से ही लिख सकते हो या तो आपकी बुक के अंदर से लिख सकते हो. ओके, जनरली बहुत ही इजी है. चले, जैसे कल आप लोगों ने एटमॉस्फेयर का लिखा था वैसे ही आज आपको वाटर के बारे में लिखना है.
पहले लिखना है कि वाटर क्यों अंडर लिक्विड है, तो जनरली ये जो है वो सारी चीज़ों उसमें से प्रोवाइड होती है। लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ऑर्गेनिज्म सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऊपर के पैराग्राफ से। नीचे के पैराग्राफ से आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, और यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विकीपीडिया, और यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बुक। ओके, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ से भी लिखना चाहो लिख सकते हो वाटर पॉल्यूशन के बारे में। Water pollution is caused by addition of harmful substances like fertilizer and pesticides from farms, sewage and towns, cities and factories, harmful chemical from, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट निकलता है वो जनरली जाता है पानी के अंदर, वो पानी खराब हो जाता है, वो पानी शायद आगे जाके कोई पिएगा तो वो भी बीमार पड़ेगा, तो सारे डिजीज़ जो होते हैं वो भी इसकी वजह से शायद हो सकते हैं हम लोगों को। ओके, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर क्या किया गया है, वाटर का जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल किया गया है, और इसके लिए सारे गाइडलाइंस जो है वो WHO के थ्रू हम लोगों ने तैयार किए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने तैयार किए हैं कि भाई इतने इतने वेस्टेज को हम लोग डाल सकते हैं पानी के अंदर, इतने इतने वेस्टेज को नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको प्योरीफाई करना शायद पॉसिबल ना हो, इस वजह से बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जनरली इसकी वजह से क्या होता है कि भाई पानी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पानी जो है वो डिजीज कॉजिंग हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर पॉल्यूशन है, जनरली आप लोग लिख सकते हो सारी चीज़ें। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सॉइल। 4 टॉपिक के बारे में स्टडी करनी थी हम लोगों को, 3 टॉपिक के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी थी, वाटर, एयर और हमारी सॉइल के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने एयर और वाटर की स्टडी कंप्लीट कर ली है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, why water is called wonder liquid, and what is water pollution? ओके, तो ये जो है वो आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। ओके, वाटर पॉल्यूशन में आप लिख सकते हो कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, कितने कितने डैमेजेस होते हैं हम लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, अपने आप लिख सकते हो। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, बहुत ही ईजी है। ये सारे जो टॉपिक्स है, एयर वाला टॉपिक भी आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हो, वाटर वाला टॉपिक भी अपने शब्दों में लिख सकते हो, सॉइल वाला टॉपिक जो भी स्टडी करेंगे वो भी अपने शब्दों में लिख सकते हो। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। ओके, जनरली सॉइल जो है वो क्या है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो सॉइल जो है वो रॉक्स के ब्रेक डाउन के कारण बनी है। ओके, हमारी जो ज़मीन है वो क्यों बनी है? ताकि हमारी ज़मीन के ऊपर की जो मिट्टी है, या तो फिर हम लोग जो है सरफेस है हमारे लेयर, अर्थ की आउटर लेयर, तो वो जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है? तो जनरली वो बनी है रॉक्स के ब्रेक डाउन्स की वजह से। तो वो ब्रेक डाउन हुआ क्यों है? तो जनरली 3 प्रोसेसेस से शायद उसका ब्रेक डाउन हुआ होगा। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसका ब्रेक डाउन हो सकता है। फिजिकल यानी कि किसी ने तोड़ा होगा, ओके, या तो फिर वो किसी चीज़ से टूटा होगा। केमिकल यानी कि वो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कभी ना कभी चेंज होंगे, जब भी वो गीला होगा तो गीला होके 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 फिर उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स लेयर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, और धीरे धीरे उसमें से क्रैक पड़ेगी, और क्रैक पड़ने के बाद वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्जन होगा, तो वो केमिकली होगा, और बायोलॉजी की या बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी वो कन्वर्जन हुआ होगा। तो जनरली आप लोग लिख सकते हो कि सॉइल जो है वो बना कैसे है? सो बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कैसे रॉक्स का ब्रेक डाउन होगा? जनरली इट इज बाय द 3 प्रोसेसेस: physical, chemical and biological processes. The sun heats the rock during the day, rock expand, and the night rock cools down. Contact this causes the rock to break into the smaller pieces. जनरली सन की वजह से डे के दौरान जो है वो रॉक गर्म होता है, एक्सपांड होता है, रात के दौरान रॉक्स कूल डाउन होता है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रॉक्स के अंदर क्रैक्स डेवलप होती है, और क्रैक्स डेवलप होने की वजह से वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है।
तो डिवाइड हो गया, ब्रेक डाउन हो गया रॉक्स का, इस वजह से वहां पर से क्या बनेगा, सॉइल बनेगी. Water enters in the cracks in the rocks. When water freezes, it expands and causes the cracks into the rock to widen and break into the स्मॉलर पीसेस. तो वाटर भी अगर रॉक के अंदर चला जाएगा तो वो भी क्या करेगा, एक्सपांड करेगा रॉक्स को, और एक्सपांड करने के बाद वो उसको क्या करेगा, धीरे धीरे क्रैक डाउन करेगा और वो वहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा. Okay. Strong winds also break down the rocks into the smaller particles and carries it from one place to another. तो winds जो है वो भी क्या करती रहती है, rocks के जो particles है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती रहती है. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट, उसको क्या करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती रहती है. ओके. द रूट्स ऑफ द लार्ज ट्रीज ग्रोज इनटू द क्रैक्स इन द रॉक. तो कई बार क्या होता है कि ट्रीज जो होते हैं उसकी जो रूट्स होते हैं उसके वजह से भी ज़मीन के नीचे जो पत्थर होते हैं उसके उसके अंदर क्या हो जाती है, क्रैक पड़ जाती है. ओके. जनरली कई बार आप लोगों ने देखा होगा, गूगल्स पे फोटोग्राफ्स देखी होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कई घर, कई होम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से ट्री निकलता है. तो उसकी रीज़न ये है कि इसका मतलब कि वो रॉक को ब्रेक डाउन करके फिर वहाँ से ग्रो हो सकते हैं ट्रीज के रूट्स जो है वो. तो इसकी वजह से जो है वो भी ब्रेक डाउन होता है रॉक का, और वो भी एक प्लेस से दूसरी जगह पर विंड ले जाएगी तो वो है वो सॉइल का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल है. तो सॉइल का कॉम्पोजिशन यानी कि सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट्स है. तो सॉइल जो है उसके अंदर रॉक्स पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, डिकेड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ह्यूमस जो है वो प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, एयर एंड वाटर प्रेजेंट है. ओके. तो ये भी है वो सारे की सारी जो है जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग थिंग्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे तो रॉक्स के अंदर की ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वो रॉक्स के अंदर भी ज़्यादा हम लोगों को मिलेगी. ओके. तो ये सारी चीज़ें हैं वो कॉम्पोजिशन होके फिर हम लोगों को सॉइल मिलती है. सो उसके बाद देखते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है. तो जनरली सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है, यानी कि हमारे जो ज़मीन है वो ज़मीन का पॉल्यूशन कैसा होता है. तो जनरली हम लोग जो फर्टिलाइज़र या फिर ऐसा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है कि ज़मीन का जो है ख़राब हो जाती है. कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन जो है वो होता है. ओके. The addition of harmful substances which affects the fertility of the soil and kills the diversity of the organism living in it, it is called as the soil pollution. तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं सॉइल के अंदर और उसकी वजह से डाइवर्सिटी या तो फिर ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ डैमेज होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसकी वजह से लिविंग थिंग्स जो है उसको डैमेज होगा और उसको हम लोग कहेंगे सॉइल पॉल्यूशन. तो सॉइल पॉल्यूशन की वजह से, सॉइल पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से, उसकी जो वजह है वो क्या है, फर्टिलाइजर्स का यूज़, पेस्टिसाइड्स का यूज़, फिर वो क्या करते हैं, वो अर्थ वॉर्म्स और बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसके न्यूट्रिशंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए. क्योंकि न्यूट्रिशन होंगे तो ही क्रॉप प्रोडक्शन में उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, और क्रॉप प्रोडक्शन में उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे तो ही वो आगे जाके यूज कर पाएंगे. ओके. तो ये जो है वो सॉइल पॉल्यूशन, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. देयर इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज soil formation and soil pollution. ओके. तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सॉइल फॉर्मेशन क्या है और सॉइल पॉल्यूशन क्या है. ओके. तो दिस इज द टू क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट. Okay, thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section. You can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. That's it for today. Till then, bye bye everyone.